Good morning students. Today we are starting the 17th group chemical properties. But before starting the 17th group chemical properties, the two properties is left, that physical properties. In before lecture we already taught you about the few physical properties, but two properties is left. The one is a solubility and another is a kinds of bonds. Just see, I am going to end that topic is also okay. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट है, इसमें दो पॉइंट आपके छूट चुके थे, उनको मैं रिपीट स्टार्ट कर रहा हूँ. द फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी, ओके, इन केस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज. So see guys, if you are talking about the solubility, that is F2, Cl2, Br2 and I2. Generally these both are highly reactive in nature, so that's why they easily and immediately or vigorously react with water. ये immediately water के साथ react करते हैं, so they giving you a high solubility with water. They are highly soluble. But what happen in case of the Br, when we are moving from top to bottom, the solubility is gradually decreasing. The Br2 is not able to react with the water, and I2 is also not able to react with water. They are less soluble. So the solubility is decreasing when we are moving from top to bottom. Why? Because when we are moving from top to bottom, the reactivity towards the compounds is decreasing. Okay, the fluorine is highly reactive, chlorine is least reactive, bromine is least reactive, and iodine is mostly least reactive. So when the order of the reactivity is decreasing, at the same time the reactivity is order toward the water, and soluble with water is also decreasing. That is the solubility cases. Okay, the next one, bonds. See, the halogen compound is showing two types of bondings. Bondings, we are talking about the bonding. So it is coming in physical properties. The bonding means two types of bondings are here. The first type of bonding is known as the ionic bonding, okay, and the next one is known as the covalent bonding. So here the two type of bondings are available. First is the ionic bonding. The second one is known as the covalent bonding. What happens when the any halogen compounds is react with any metal? अगर कोई halogen compounds ने किसी metal के साथ bond बनाया है, so in that case metal contain positive and chlorine contain the charge, negative charge. So these such type of bonding is known as the ionic bonding. When the bond established in between the metal plus non-metal, or we say halogen. अगर metal और halogen के बीच में bonds बना है, तो they creating some ionic character. But what happen in case of the covalent bonds? In case of the covalent bond, here two halogens combine with each other. Two halogens combine with each other, like to be a Cl and Cl, and giving you Cl2. Okay. So here the equal sharing of electron take place. Also, when the equal sharing of electron is take place, that such type of bond responsible the formation of the covalent bond. Like जैसे ये क्लोरीन है, इसके outermost shells में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7. Okay, generally you have studied in your junior classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So that chlorine also have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So one chlorine is taking one electron from this chlorine, another chlorine is also taking from this chlorine. So कैसी sharing हुई? Equal. That chlorine also donating one electron to the another chlorine. That another chlorine also donating one electron to the that chlorines. So here the mutual sharing is take place. Such type of bond is known as the covalent bond. But what happen in case of the sodium? आपको पता है सोडियम के outermost shells में एक इलेक्ट्रॉन होता है, and chlorine have these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम जनरली डोनेट करेगा, क्योंकि डोनेट करने पे वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है. So here the sodium donating electron, that's why acquiring a positive charge, and chlorine have tendency to take one electron and complete their octet, so that's why chlorine contain negative charge. And after the sharing of electrons, the sodium contain positive and chlorine have negative, that's why that bond is ionic bond, but that bond is known as the covalent bond in nature. So two type of bondings are observing in case of the halogen. Okay, so halogens are capable to form the covalent as well as the ionic bond. So guys, after that we are starting our chemical properties. Here the physical properties is completed. See what happen in case of the chemical properties. Chemical properties में भी आज हम केवल दो ही properties की बात करेंगे. The first one is oxidation state and second one is reactivity towards the hydrogen. Okay, so first one is oxidation state.
So for the oxidation state, we need to write down their electronic configurations, but I am not going to elaborate their whole electronic configurations. We are just only writing its outermost shell electronic configuration. It's a time consuming process. Okay, so that's why we are writing here. The first member is fluorine, the second is chlorine, that bromine and iodine and acetylene. Acetylene, you know, the radioactive, so we are not considering into any kind of the reactions because its half life is very less और इसकी other properties भी analysis नहीं हो पाती क्योंकि इसकी half life इतनी कम होती है कि बनते ही disappeared होने लगता है. So see guys, the fluorine, its outer electronic configuration is 2s2 2p5. Is 2 means belong to second period. Okay, p block and 5 plus 2 7, 17th group. This one is 3s2 3p5. अब 3p है तो 3d भी होना चाहिए. ओके, 2p है तो 3s होगा, d ऑर्बिटल्स एब्सेंट रहेंगे. इस द बिलो वन द 4s2 जैसे जैसे नीचे आएंगे नंबर ऑफ क्वांटम्स शेल्स बढ़ती जाएंगी. दैट इज 4p5 and 4d0. ओके, दैट इज द 5s2 and 5p5 and 5d0. Same as well as the 6s2 6p5 and 6d0. Okay, this is the outer electronic configurations. These are the filled orbitals. So see guys, what happened in case of the fluorine, all the elements, generally fluorine, what he is doing, he is taking electron, not donating. ये डोनेट नहीं करता, जनरली इसका एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है और इसके इलेक्ट्रॉन देखो ट्रांजिट भी नहीं हो पाते. क्यों? क्योंकि p ऑर्बिटल्स में क्या है, ओनली वन वैकेंसी इज हियर. So one is half vacant, so they have tendency to take one electron from outside and complete their fulfill electronic configuration. तो ये donate नहीं करता, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा. Okay, so its oxidation state is -1. But generally the fluorine also showing +1 oxidation state only in one condition, when HOF type of compound is available. Only in HOF fluorine have +1 oxidation state. Why? Due to the instability of this compound. इस compound का unstable behavior fluorine को +1 में convert करने में help करता है. Only for that case. It's an exceptional case for the fluorine. Neither fluorine having only a -1 oxidation state. Understood? Next one. If we are talking about the chlorine, so see guys, chlorine में 3s2 fill है. ओके, और क्या है आपका 3p5 भी क्या है, नियरेस्ट इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ मूव कर रहा है. मगर इसका लकी चांस ये है बिकॉज दे हैव 3d आल्सो, बट 3d क्या है, 0. जनरली क्लोरीन हैव टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन. ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर सकता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1. बट they have tendency to unpair their electron. ये एक एक करके अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है, unpaired, because they have vacant d orbital. अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, अब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा. तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चली गई आपकी, +3. उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड कर देगा, तो अब देखिए 1 2 3 4 5, अब कितनी हो गई, +5. Then last subshell electron is also jumping. अब देखिए how many unpaired electrons are here, 1 2 3 4 5 6 7. So the another halogens are also showing the same kind of oxidation state, -1 +3 +5 +7. 4 oxidation state generally showing by the halogen. सब में ही ऐसा होगा, सब के सब क्या करेंगे, या तो -1 या +3 या +5 या +7. Why? Because they have capability to shift their electron in d orbital and their unpaired electrons are participating in bonding. ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अनपेयर्ड करके एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, उनकी शेयरिंग करते हैं. तो शेयर करने का मतलब डोनेट करते हैं. That's why they acquiring with charge +7 चार्ज. तो माइनस उस केस में होगा जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन्स केवल ले और p ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल कर ले, बट d ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होने के कारण दे शिफ्टिंग देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल टू d ऑर्बिटल्स. सो ड्यू टू दिस दे एक्वायरिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट. सो एवरी हैलोजेंस हैव कैपेबिलिटी -1 +3 +5 and +7. okay,
एसिटाइन को जरा रिमूव कर दीजिए बिकॉज यू नो दैट आर रेडियो एक्टिव और फॉर्मेशन इसका कुछ और ही रहता है. बट द अदर हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन, द अदर ऑल आर शोइंग +1, +3, +5 and +7 oxidation state. Okay, so these are the electronic configurations criteria of this compound. See, here is also the two type of bondings are observing. Well, how if just Cl generally showing -1 oxidation state, okay, but if the Cl is attached with F, अगर Cl F से जुड़ जाए so it's showing +1. You know why? Because the fluorine is more electronegative, so fluorine is pulling all electron on towards. यहाँ पे अगर फ्लोरीन क्लोरीन से जुड़ जाए तो वो सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल कर लेता है. तो जहां इलेक्ट्रॉन पुल होंगे इस कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज एंड क्लोरीन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज. इस तरह के हैलोजेंस को आपस में जुड़ने से जो कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. आपने वेस्पर थ्योरी में इस तरह के कंपाउंड को निकाला था जैसे ClF3. तो वहां पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि व्हाई ClF3 इज टी शेप्ड. क्यों ClF3 टी शेप्ड क्यों होता है? Here two halogens compound are mixed, they are known as the interhalogen compounds. So in such cases the halogens have the capability to showing plus oxidation state. कब? जब एक हैलोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन के साथ जुड़ा हो तब वो उस केस में आपका प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी रखता है. ओके, सो दिस इज द केस. ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू सम अनदर एग्जांपल आल्सो. वी हैव अ लॉट्स ऑफ एसिड्स. ओके, सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल HOCl, HOBr and HOI, आयोटिक एसिड. इस केस में क्या है? इस केस में जो हैलोजेंस होते हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जाता है प्लस और OH क्या करता है माइनस. वाई? बिकॉज हियर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन. ओके, तो O जो है इसका साइज छोटा है क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो वो इलेक्ट्रॉन पुल करता है. तो जितने भी ये हाइपोक्लोरस एसिड, ब्रोमिक एसिड्स होते हैं इस केस में हैलोजन के ऊपर कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव. व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर ऑर्गेनिक एनालिसिस, जब आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम करेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल लगता है. फिर आपको जैसे आपको HCl दिया तो HCl तो आप कह रही है कि Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि Cl मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको तो आप आसानी से डिकम्पोज कर देंगे. सपोज आई एम गिविंग यू HOCl बना कैसे? जब HCl की रिएक्शन H2O से कराई जाती है तो H. ओके, सो यहाँ पे जनरली क्या होता है आपका ये HO और Cl और ये दो H किस फॉर्म में निकलते हैं H2, तो क्या बनाएंगे HOCl. तो हाइपोक्लोरस एसिड, तो वहां पे कंपाउंड्स में OH नेगेटिव पार्ट में टूटेगा और Cl पॉजिटिव. व्हाई? ये फैक्ट होने के कारण क्योंकि Cl से ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन की पावर अभी क्लोरीन के बिहाफ पे ज्यादा है. ओके, सो इन सच अ कंडीशन दे आर शोइंग यू मोर ऑक्सीडेशन स्टेट. माइनस के अलावा ये प्लस भी शो करते हैं. सो दीज आर दी सम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दी हैलोजन कंपाउंड्स. इंटर हैलोजन कंपाउंड से भी आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरीन अगर किसी से जुड़ जाए तो फ्लोरीन वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरा हैलोजन को पॉजिटिव शो करना पड़ेगा. सो दीज आर देयर ऑक्सीडेशन स्टेट. आप इनके अदर कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप ये पढ़ेंगे ClO3, फिर आप पढ़ेंगे ClO4. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की किस में आएगी? प्लस में. ओके, अब निकालेंगे X प्लस माइनस 2 into 3 इज इक्वल टू 0. तो X इज इक्वल टू क्या होगा? 6. यही आएगा. तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? बस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है. ओके, बट वी आर ऑब्जर्विंग सम न्यू थिंग इज आल्सो हियर. सो गाइस, यहाँ पे जो हैलोजेंस हैं वो आपका प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करते हैं? शो करते हैं. तो यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है. जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा तो वो उतने अच्छा किसकी तरह बिहेव करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. और जितना कम आपका पॉजिटिव्स होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. सो दे बिहेविंग लाइक अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज आल्सो. मगर आपको पता है जो स्मॉलेस्ट साइज का होता है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लेता है. तो फ्लोरीन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन जल्दी लेते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और जो इलेक्ट्रॉन्स लेते नहीं, देने की कैपेसिटी रखते हैं, दे बिहेविंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऊपर से नीचे आने पे जब साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर बढ़ जाती है
अट्रैक्ट करने की घटती है, तो जो नीचे को आ रहे हैं दे बिहेविंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड अबव वन इज बिहेविंग लाइक टू बी अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट. अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हैं. इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर. Its oxidizing power. ठीक है. Generally, you know, in case of fluorine का outermost shells में 3 electrons होते हैं, 5 electrons हैं. So they have generally tendency to easily accept electron. ये क्या करेगा? Easily इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा. तो किस में कन्वर्ट होगा? F माइनस में. ओके, जनरली F2 होता है और twice F माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर. So fluorine have tendency to easily take electron. If we are comprising on the behalf of chlorine, so chlorine is also have 5 electron in their outermost shells. मगर क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के बिहाफ में थोड़ी क्या होता है? बड़ा. तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की पावर थोड़ी फ्लोरीन के बिहाफ में क्या हो जाएगी? कम. मगर ये भी लेगा. So 2 इलेक्ट्रॉन लेने पे ये भी क्या बना देगा? नेगेटिव. अब भाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऑब्वियसली कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव. But when we are moving from Br2 and I2, the size of their elements are biggest. जिसका साइज एलिमेंट का बिगेस्ट हो जाए तो उसके न्यूक्लियस की टेकिंग पावर भी क्या हो जाती है? लो, बिकॉज न्यूक्लियस अंदर रह जाता है और शेल्स बढ़ जाती हैं. At that time they are not behaving like to be a good oxidizing agent. अब साइज बढ़ने पे क्या होगा? न्यूक्लियस की होल्डिंग पावर कम होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, डोनेट करेगा. ओके, तो those who are donating they behaving like to be a reducing agent. So if we are comparing their oxidizing power, so fluorine oxidizing power is plus 2.06 volt and chlorine oxidizing power is 1.9 volt and bromine oxidizing power is plus 1.0 volt and the iodine oxidizing power is 0.8 वोल्ट. तो आपने जब रेडॉक्स सीरीज देखी थी तो उसमें बोला था those who have the high negative value, जिसकी वैल्यू अगर मोर नेगेटिव्स होती है they behaving like to be a reducing agent. But when we are moving from bottom to top the negative value changing into positive, और जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होती है they behaving like to be a oxidizing agent. तो देखिए that according to this data the fluorine have easily take electron, so that's why its oxidizing power is greater than comparison to the another one. तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लोरीन क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. So they have tendency to immediately take electron and oxidize the compound. अगर फ्लोरीन और क्लोरीन को किसी के ऊपर डाला जाए, किसी सब्सटेंस के ऊपर, तो ये उससे इलेक्ट्रॉन लेकर उसको तोड़ देते हैं. जैसे क्लोरीन is using as a disinfectant or as a bleach powder. What is the meaning of the bleach powders? Bleach means when the chlorine powder is come to the contact with the any substance, they easily take their electron and decompose this compound. तो उनका काम ही जो है वो decompose करना होता है. That's why they behaving like to be a oxidizing agents. So these are two powerful oxidizing agents are here. But when we are moving in a groups, the oxidizing power is decreasing, means tendency to take electron is decreasing because their size is also increasing. तो oxidizing power जो होती है, the oxidizing power is directly proportional to small size of element of halogen. यानी और भी नहीं, halogen ही नहीं, अदर एलिमेंट के केस में भी आप बोल सकते हैं. तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कब बढ़ती है? जब साइज स्मॉल होता जाता है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. And oxidizing power is inversely proportional to the biggest size of atom, biggest size of element or halogen. यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर कब घटेगी? जब एटम का साइज बिगेस्ट होगा और रिडक्शन इनका उल्टा हो जाएगा. ओके, so these are the point or data. On the behalf of this point or data, we are identifying which one is behaving like to be a oxidizing and reducing agent. Okay guys, so this is the first point we have done, its oxidations and oxidizing power.
The next one and the last topic for today is reactions with hydrogen. That's a very important topic. From here, the 2-3 marks questions are coming. Arrange the compounds. Why this is not reacting, like to be such type of reactions. Okay, see. The second point under coming to this chemical properties is reactions towards hydrogen or reactions with hydrogen. I am showing you the reaction with hydrogen. Generally, अभी मैंने आपको बोला कि FCl, Br, I, इनमें से जो सबके सब हाईली रिएक्टिव्स होते हैं वो F और CS के फॉर्म में जो रिएक्ट करते हैं, एंड जैसे साइज बढ़ने लगता है तो एलिमेंट्स जो होता है उसकी रिएक्टिविटी लूज हो जाती है. सेम कंसेप्ट इज कमिंग हियर. Okay, when the F2 is reactive with H2, it's generally giving you twice HF, and Cl2 is reacting with H2, they giving you twice HCl. Okay, so the such type of compounds are capable, but these reactions are take place in the presence of platinum. Generally, what happens? We don't need any kind of substance because fluorine is highly reactive, and when they react with hydrogen, they form HF. Okay. They don't need any kind of heat from outside क्योंकि ये है इतना रिएक्टिव कि हाइड्रोजन से इमीडिएट रिएक्ट करता है. क्लोरीन भी रिएक्ट कर जाता है. क्लोरीन को सनलाइट की रिक्वायरमेंट पड़ती है. ब्रोमीन के केस में HBr बनाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? इसको हीट देनी पड़ती है. बट आयोडीन एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता. इसके लिए कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका फॉर्मेशन करने के लिए हमें कैटलिस्ट देना पड़ता है, जिसमें आप क्या लेते हैं? प्लैटिनम. इसका मतलब देखा जा रहा है कि कितना रिएक्टिविटी डाउन हो रही है टुवर्ड्स द हाइड्रोजन. ओके, सो इफ वी नीड टू प्रिपेयर देयर हाइड्रोजन एसिड्स और हाइड्रोजन हैलाइड्स, सो वी नीड टू टेक सम कंडीशंस. जैसे अगर आपको लैब में HF बनाना है और HCl बनाना है, इन केस ऑफ द HF और HCl, अगर आपको if you are going to prepare the HF and HCl inside your laboratory, so what you are doing? So here in case of the fluoride, ये reactions आपने H2SO4 में करी थी. CaF2 react with H2SO4, so they giving you what? CaSO4 and you are getting twice HF. देखिए बन गया. Highly reactive towards the acids because fluorine is highly reactive compounds. In case of this fluorine, in case of chlorine, you take the salt of NaCl. Okay, and here we are taking twice Na. It will be able to react with H2SO4 and giving you Na2SO4 and they giving you twice HCl. Very easy. यानी कि अगर HF और HCl बनाना है तो डायरेक्टली एसिड्स के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे और हमें क्या मिल जाएगा? हेलो एसिड्स मिलेंगे. दैट इज द HF और HCl आर हेलो एसिड्स. तो क्या सेम वे में हम HBr और HI भी बना सकते हैं? It is not possible. If you are adding HI, if you are going to prepare HBr and HI, so we are not using H2SO4. Why we are not using C? HF और HCl में फ्लोरीन और क्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण वो डायरेक्टली H2SO4 के साथ रिएक्ट करके अपना HCl और HF बना लेते हैं. But if you are going to prepare the HBr and HI, they are not prepared by the directly reactions with H2SO4. Why? ये देख लीजिए. What happens? Suppose आप Br बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या लेंगे? NaBr लेंगे, सॉल्ट लेंगे जैसे हमने लिया था. फिर आप क्या करेंगे? उसकी रिएक्शंस कराएंगे. आप चाह रहे हैं कि नहीं हम H2SO4 से ही प्रिपेयर करेंगे. Here they giving you Na2SO4 और फिर आप बनाएंगे HBr, twice HBr बना. ये इसी रिएक्शंस में क्या होता है पता है आपको? जो बचा हुआ H2SO4 होता है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है? आपने पढ़ा है SO2 प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन. ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है? HBr के साथ रिएक्ट कर जाता है और H2 में किसके साथ रिएक्ट करेगा? O के साथ क्या बनेगा? H2 और Br किस फॉर्म में निकल जाता है? Br2. पूरी रिएक्शन में जहां बनना था HBr वो तो हो गया कंज्यूम. किसके थ्रू कंज्यूम हुआ? नेसेंट ऑक्सीजन के थ्रू. बचा क्या? कहीं पे HBr बचा है क्या? कटने के बाद क्या निकला? बनाना था HBr और वो ब्रोमीन बेचारी निकल गई किसके फॉर्म में? Br2 के फॉर्म में. तो HBr तो बना ही नहीं. So why? That's why we are not using H2SO4 for the preparation of HBr.
बिकॉज H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। जो H2SO4 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होता है इन केस ऑफ प्रिपरेशन HBr। अब बचा क्या देख लीजिए, ट्वाइस NaBr, ओवरऑल रिएक्शंस को देखते हैं, और क्या बचा 2H2SO4 and it is converting into Na2SO4 and it's giving you guys how many H2O, twice H2O, giving you SO2 और giving you Br2। जहां HBr बनना था वहां तो आपकी Br निकल चुकी है, अब आप कैसे बनाएंगे? ओके, सो दैट रिएक्शन इज नॉट सफिशिएंट। और सेम ऐसे ही क्या मिलेगा, ये NaBr की जगह NaI कर दो, NaI, ओके, तो यहाँ HBr की जगह क्या निकलेगा, HI निकलेगा। और सेम एज, अब ये तो ऐसे ही रहेगा, और HBr की जगह क्या लिखो, I लिख दो, और Br2 की जगह क्या लिख दो, I2। यानी कि आयोडीन आल्सो गिविंग द सेम काइंड ऑफ रिएक्शन, यानी कि HI और HBr बनाने के लिए H2SO4 का यूज नहीं करना, बिकॉज दे बिहेविंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तो फिर कैसे बनाया जाए, हाउ वी आर प्रिपेयरिंग HBr एंड HI। सो हियर वी आर टेकिंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। अब क्या है वीक ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स? 90% students they don't know about which acid is behaving like to be a weak oxidizing acids। okay, यहाँ पे weak oxidizing acids में एक ही एक ऐसा एसिड्स होता है, खैर बहुत है में से, H3PO4, इसे हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, तो HF और HCl बनाना है तो H2SO4 का यूज करा जा सकता है, क्योंकि वहां H2SO4 जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग होता है, क्लोरीन फ्लोरीन उससे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता, वहां केवल HCl HF बनता है। बट यहाँ तो अगर Br और I एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उनके लिए एसिड भी वीक होना चाहिए, और वो क्या है, H3PO4। तो सी गाइस, in case of the H3PO4 but we are taking H3PO4 की रिएक्शंस, अब आप किससे कराइए, NaBr से। NaBr हम 3 लेंगे, क्योंकि ये क्या बनाएगा, फॉस्फेट होता है -3, सोडियम हो गया +3, Br हो गया 3-, देखो एक Br 1-, कितने हैं 3, और हाइड्रोजन हो गया 3+, सब 3-3 हैं, यानी बैलेंस है। अब रिएक्शन करा लीजिए, तो Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, the second one 3H react with 3Br, it will give you thrice HBr। बन गया, no tension, we are getting the HBr by the reactions with phosphoric acid। same phosphoric acid we are taking for the preparations of NHI। यहाँ पे भी 3 ले लीजिए, यहाँ पे भी क्या बनेगा, Na3PO4 plus thrice HI। तो ये डिफरेंस है इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर में। जो स्ट्रॉन्ग थे उन्होंने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करा, जो वीक थे उन्होंने वीक के साथ रिएक्ट करा। दीज आर ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दिस कंपाउंड्स। ओके, सो दैट इज द रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। इस तरह से जो रिएक्टिविटी होती है वो हाइड्रोजन की हाइड्रोजन्स के लिए अलग अलग देखी जाती है। सो दैट इज द रिएक्टिविटी। सी द नेक्स्ट वन। अब इसी में आता है फर्स्ट आइडिया, हम सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसकी, हाइड्रोजन एसिड की, HI, HF, Cl। ओके, आपने फजान रूल्स पढ़ा था, वो यहाँ आएगा, उसी के अंडर है, हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन के अंडर ही पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज HF, HCl, HBr, HI। Which one is easily soluble in water? The solubility is depend upon its dipole moment, यानी कि जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। फ्लोरीन छोटे साइज का है तो तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ क्लोरीन भी क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, मगर इसके मामले में कम, क्योंकि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए थोड़ी इज टेकिंग टाइम, बिकॉज द साइज ऑफ क्लोरीन इज बिगर देन साइज ऑफ फ्लोरीन। देन जैसे जैसे नीचे को आएंगे इलेक्ट्रॉन पुल करने पे के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। सो इस पे इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ना HBr में ना HI में। अब देखिए क्या है, अगर इसको वाटर, इन सब को वाटर के साथ डिसॉल्व करूं तो वाटर क्या चाहता है, वाटर इज लाइक अ चार्ज, यानी कि जिसपे ज्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना अच्छा क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो जितनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वो उतना ही ज्यादा पानी में सॉल्युबल होता है। सो विच सॉल्युबिलिटी इज वेरी हाई, HF। यानी कि इस ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे की तरफ को मूव करूं तो नेगेटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी धीरे धीरे घटती जाती है, क्योंकि इनका साइज धीरे धीरे
बढ़ता जाता है तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजिंग। मैंने आपको रीजन बताया। और अगर इसमें अप साइड्स मूव करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग, द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग। ओके, सो व्हेन वी आर मूविंग डाउन टू अपसाइड, क्यों, क्योंकि ऊपर को जाने पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बनने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। तो इस तरह से जो HF होता है, ओके, ये H और ये क्या है F, तो F पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। और वाटर क्या करता है, वाटर ऐसा रहता है, H पॉजिटिव, O नेगेटिव एंड हियर इज H इज पॉजिटिव। तो वाटर का जो पॉजिटिव होगा वो फ्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हियर इज आल्सो केपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। मगर आयोडीन के केस में तो नेगेटिव चार्ज डेवलप ही नहीं हो पा रहा क्योंकि उसकी अट्रैक्शन पावर कम है। क्यों कम है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो इफ दे आर नॉट डेवलपिंग नेगेटिव चार्ज तो कैसे वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई द HF इज कैपेबल टू फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई इट्स सॉल्युबिलिटी इज टू मच हाई। ओके, दैट इज द रीजन ऑफ solubility. So guys, that's all for the day. I hope it's enough. The next day we are working on the other hydrogen melting points, boiling points, strength, acidic nature, thermal stability. We are talking about these important points. Okay, thank you.